تیرا رحم اور کرم ہے کہ تو نے پیارے خداون ان سانسوں کو بحال رکھا ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، اور پیارے خداون تیرے نام کی تمجید میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے خداون تیرے نام کا شکر ادا کرتے ہیں ایک ایک نعمت کے لیے، تمام بلیسنگز کے لیے جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہیں، تمام ان رشتوں کے لیے جو پیارے خداوند ہماری زندگیوں میں تو نے بخشے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پیارے خداوند آپس میں پیارے خداوند ہم ایک رفاقت میں بھرتے ہیں، اور پیارے خداوند ہم تیرے نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے خداوند ان سب تمام بلیسنگز کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ تمام ابھی جو پیارے خداوند پاک کلام پیش ہونے کو ہے، پیارے خداوند ورڈ آف گاڈ ہم سننے کو ہے، تیرا پیارے خداوند پاک اور شیریں کلام جس سے ہم ڈھیروں برکات پانے کو ہیں، اس کے لیے میں دعا کرتی ہوں۔ پیارے خداوند اپنے بندہ کو جو اس وقت پیارے خداوند تو نے چنا ہے کہ پیارے خداوند وہ ہم اس چھوٹی سی جماعت میں پیارے خداوند ورڈ آف گاڈ سنائے، پیارے خداوند ان کو بلیس کرنا، ان کے دل دماغ روح وجود کا ذمہ لینا، پاک روح کا پیارے خداوند پہرا ہو، اور پیارے خداوند ایک ایک کو پیارے خداوند ہمارے ذہنوں کو کھولنا، ایک ایک کو چھونا اور برکت دینا، اور پیارے خداوند یہ بخش دینا کہ اس تمام پاک شیریں کلام سے جو ہم سنیں پیارے خداوند، اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو پیارے خداوند، اور ہم کبھی بھی ڈگمگا نہ جائیں اپنی زندگیوں میں، اور پیارے خداوند جس طرح مضبوطی سے پیارے خداوند اب تیری تمام پیارے خداوند اس دی ہوئی زندگی میں بڑھتے رہیں، ایمان کی مضبوطی دینا پیارے خداوند اور جو ابھی پیارے خداوند پاک کلام پیش ہونے کو ہے، اپنے بندہ کو برکت دینا، ان کے دل دماغ و وجود کا ذمہ لینا، ہر طرح کی ابلیسی کو طاقتوں کو پیارے خداوند تیرے لہو میں باندھ دیتے ہیں پیارے خداوند، کہ پیارے خداوند جو بھی پیارے خداوند ورڈ آف گاڈ ہم سنیں پیارے خداوند، ہم اس کو اپنی پوری عقل اور سمجھ کے ساتھ سنیں، اور پیارے خداوند اس سے بہت سا پھل لائیں پیارے خداوند۔ سب جلال تیرے نام کو دیتے ہیں، مانگ لیتی ہوں پیارے خداوند یہ سب کچھ تیرے مسیح نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ آئی تھنک ایسا پاسبل ہے کہ میں کال کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کروں، یا کیونکہ مجھے سسٹر ٹینا کی بار بار کال آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے کنیکٹ کریں، اور بھائی دانش کا نیو نمبر انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سے مجھے کنیکٹ کریں۔ سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ سسٹر ٹینا، لیٹس سی کہ وہ کنیکٹ ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں۔ سو لیٹس سی شی ہیز جوائنڈ۔ مجھے ریکنیکٹ ہونے دیں، میں ریکنیکٹ کرتی ہوں کال، اینڈ دین ہم کلام کی طرف پڑھیں گے۔ پاسٹر نتھینیل آپ ساتھ رہیے گا، آپ سب بھی ساتھ رہیے گا، میں کال دوبارہ کرتی ہوں کیونکہ وہ نیا نمبر میں نے دانش بھائی کا ایڈ کیا ہے تو کال وہاں نہیں جا رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا کال کو لیو کریں، پاسٹر نتھینیل، بردر جیکسن اور بھائی پترس آپ لیو کر دیں کال کو، میں دوبارہ سے کنیکٹ کرنے لگی ہوں کال کو۔ جیکسن بھائی اور بھائی پترس پلیز کال کو لیو کریں، پلیز لیو کریں۔ Okay, I'll try to add again. جیسمین جیکسن بھائی کو کہنا ہے کہ وہ کال میں آ جائیں، ان کو بولیں کہ کنیکٹ ہو جائیں۔ وی آر بیک آن اگین، اور آئی تھنک بھائی ایاز تھے بیچ میں۔ ہاں میں نے بتا دیا، کر رہے ہیں کنیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کلام کے بعد ریڈی رہیے گا ایک اور ورشپ کے لیے، اور آئی تھنک آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ٹینا، ہوپ فلی شی کین جوائن۔ ان کو کال جا رہی ہے۔ اوکے چلیے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ایوری ون، دوبارہ سے ریکنیکٹ ہونے کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں، اور آئیے اب ہم کلام کا وقت ہے، اور جیسے کہ ہم نے شروع میں اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی ریسپیکٹڈ پاسٹر نتھینیل موجود ہیں،
हॉलैंड से, वो हमारे दरमियान खुदाम का कलाम आज शेयर करेंगे। वेलकम पास्टर जी, आइए अपने माइक को म्यूट कीजिए, खुदाम का कलाम पेश कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर खुदा। बिस्मा रबना सैयदना रब्बुल आलमीन रब्बुल इज्जत रब्बे जुल जलाल फखरे किबरिया अक़द दो जहां खातमुल अंबिया जनाब यस्सु के बाबरकत नाम में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि एक बार से फिर हमें दुनिया भर से चुना और इस लायक बनाए कि हम वाजिब तौर पर उसकी इबादत कर सकें, उसकी महिमा गा सकें और उसकी बरकत को पाते हुए उसका शुक्र बजा लें। कि ये सारी प्रस्तुत के लिए मैं गुजार कि खुदा के जलाल के लिए आपने अपने लबों का नजराना कीमत पेश किया। शुक्रगुजार सिस्टर नीला का कि उन्होंने मुझे आज कलाम पेश करने के लिए कहा और हम सब मिलकर खुदा के कलाम से सीखने की आज कोशिश करेंगे और जो खुदा का रूह मुझे देता जाएगा मैं आपके सामने रखता हूं और यकीनन हम अपने इत्काद के मुताबिक उसको एक बरकत के रूप में अपने आप में पाएंगे। आज का कलाम आपने बेशुमार बार उसको सुना होगा। कलाम इंतहाई सादा और उसकी गालियों को हम खुदा से पाक रूह के वसीले से मांगेंगे कि खुदा हमें उन अगाहियों से रोशनास करके हम उनको जानते हुए इस कलाम के ऊपर अमल पैरा होने वाले बन जाए। बुजुर्ग याकूब का खत उसका दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत से कलाम को लिया गया है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। ये एक हकीकत है कि जब हम किसी चीज पर अपने ईमान को रखते हैं और पीछे उसके कुछ अमल नहीं है तो उस ईमान का कुछ फायदा नहीं है। मैं आप सब जो आका के मानने वाले हैं, जिसका तवक्कल हमारी निजात है कि वो इस दुनिया में आया हमारे गुनाहों को धोते हुए हमें नजात अब्दी दे गया। तो इसके पीछे जो मंतक है वो हमारा ईमान है। ना हमने जनाब यस्सु को अपना खून बहाते देखा, ना हमने उसको रूबरू पाया, लेकिन जब हम के वसीला से उसके साथ जुड़ते हैं इस ईमान के तहत कि वो हमारा कुल है जिसके वसीला से हमें जिंदगी मिली है, क्योंकि जब आपके और मेरे अमाल ईमान के साथ जुड़ते हैं तो हम उसको पाते हैं। अगर इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देखूं कि इसके पीछे अमल क्या है तो मुझे वो औरत दिखाई देती है जिससे 12 वर्ष से खून जारी है। अपना
मालो असबाब मुआवजों को दे चुकी है, लेकिन कुछ अफाका नहीं। जनाब यसू का पर्चा वो सुनती है और जनाब यसू पर अपने ईमान को ले आती है, और उस ईमान को पूरा करने के लिए अपने आप को उस अमल में ले आती है कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यानी पहले वो ईमान लेकर आई और फिर उसने क्या किया, उसने उसको अपने अमल से अंजाम दिया। और जब जनाब यस्सु को उसने छुआ तो जनाब यस्सु ने मुड़कर अपने शागिर्दों से पूछा कि किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि जनाब यस्सु ये बखूबी जानता है कि उससे कुव्वत निकली। अगर आप लूका 6 बाब देखते हैं तो वहां जनाब यस्सु इस बात का अपने मुंह से इजहार करते हैं, क्योंकि उसमें एक अल्लाही कुव्वत है। वो कुव्वत जो रोगियों पर जाहिर होती है कि जैसे ही रोगी उसे छूते हैं तो उससे वो अल्लाही कुव्वत जो उनके छूने से निकली उनको चंगाई दे गई। सिस्टर नीना, आपके पास बाइबल है तो अगर कोई भी पढ़ना चाहता है तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी जमात है तो हम सब सीखने के इस। जी पास्टर जी बताइए रेफरेंस। जी लूका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत। लूका 6 बाब 19 आयत। जी जी। और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बहुत बरकत हो। आमीन 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 आमीन। और वही हुआ कि उसने जनाब यस्सु को छुआ, उस पोशाक के किनारे को छू लिया। अगर मैं इसको अब्रानी जुबान में जो बाइबल लिखी गई है उसकी तरफ देखते हैं तो वहां पे बड़ी डिटेल के साथ जनाब यस्सु के उस लिबास के ऊपर बड़ा गौर से लिखा गया है। यानी यहूदी रिवायत के मुताबिक जो वो लिबास पहनते थे उसके नीचे लिबास होता था, ऊपर जुब्बा था, ताकि कोई पाक चीज उस जुब्बे को छुए तो जब वो किसी पाक काम में जाते थे उस जुब्बे को उतार देते थे कि अगर कोई नापाक चीज उससे लग गई है तो वो पाक तरीन जगह में वो जुब्बा ना जाए। इसीलिए उसने सिर्फ उसको छुआ और जनाब यस्सु ने पहचाना कि उसमें से कुव्वत निकली। और जब वो औरत भाप गई कि जनाब यस्सु को ये मालूम है कि मैंने उसे छुआ जो नापाकी की हालत में थी, तो वो आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी जो उसके साथ आप बीती थी, जो वो बीत रही थी, उस बीमारी में उसने उसको क्या किया, इकरार किया और पूरे
शफकत जो उसमें कूट कूट के भरी थी, क्योंकि वो तो मोहब्बत का करे, तो शफकत तो जाहिर थी। और जनाब यस्सु ने उसको कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामती से चले जा। क्या रुतबा दिया उसके ईमान का। उसके ईमान से उसने पाया। जनाब यस्सु ने उसको बेटी का रुतबा दिया और उसने कहा, सलामती से चले जाए। क्योंकि पहले वो ईमान ले आई उसकी उस बशावीत पे कि रोगी शफा पाते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों से कलवा भेजा कि आने वाला तू ही है कि हम दूसरे की राह देखें, तो जनाब यस्सु ने उस बिशारती कामों को उसके शागिर्दों के गोशगुजार किया कि सब वही हो रहा, और वही खुशखबरी की नवीद को इस औरत ने सुना और वो ईमान ले आई, और ईमान के मुताबिक उसने अपने अमल को और इसीलिए बुजुर्ग याकूब ये हमें आज फिर से सिखाता है कि ईमान बगैर माल के मुर्दा है। अगर हमारे काम काज, हमारे रवैये, हमारे उसर सलूक किसी के साथ सिर्फ दिखावी है, तो उनका कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि कलाम इसकी शहादत देता है, और ये हमें रसूल आज़म खुद सिखाता है। वो कहता है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। और फिर आगे कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। किसका बदला देता है? आपके ईमान के साथ आपके कौलो फ़ील, आपके कामकाज, रवैये जो आप दूसरों के साथ रखते हैं। अगर के साथ कोई दगा करता हूं तो वो बुरी आदत में शामिल होते हुए एक दिन मेरे सामने आएगा और मैं उसका खमियाजा भुगतूंगा। तो करना ये चाहिए कि हम अपने ईमान के साथ अपने अमाल को दोहराएं। जब हम अपने अमाल को देखते हैं कि मुझ में क्या कमी, क्या खामी है, तो जब हम उस खामी के ऊपर अपने आप को लाते हुए उस खामी को जनाब यस्सु के सामने रखते हुए खामी को दूर करते हैं, तो यकीनन अपनी बरकत को दुगना, तिगना और चौगना पा लेते हैं। क्योंकि वो पाकलाम के मुताबिक अपने को बदला देता है। कैसे बदला देता है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें उस डाकू की मिलती है। पहले दोनों जनाब यस्सु को लान तान करते हैं कि तूने औरों को तो बचाया, अपने आप को बचा।
तूने ऐसा किया है, तू अपने साथ वैसा क्यों नहीं करता? लेकिन जब वो अपनी हालत जार पर देखता है कि मैं तो कई जुर्मों में अपनी सजा पा रहा हूं, जो मैंने किया था उसका मुझे मुआवजा मिल रहा है, खताएं की, गुनाह किया, मार कूट की है, इस बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो नाहक है। जब उसने अपने आप को पहचाना, आजज किया, तो क्या हुआ? उसने अपने आप को जनाब यीशु के आगे झुका दिया और अपने जानते हुए उसके सामने जब अपने आप को झुकाया और जनाब यीशु से अर्ज की कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बारगाह में जाए तो मुझे याद करेगा। जनाब यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये उसने बदला पाया, उसने की पहले अपने आप को जाना, अपनी खताओं का इकरार किया, अपने सर को उसके सामने झुकाया, उसको खुदावन माना, उस पर ईमान ले आया और ईमान लाने में उसने अपने अमल को के उसके सामने झुकते हुए अर्ज की कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बारगाह में जाए मुझे याद रखना। तो उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये था उसका अमल, ये था उसका ईमान, जिसके वसीले से उसने निजात को पाया। लेकिन अगर हम ईमानदारों के बाप अब्राहम की तरफ देखते हैं, जिसको ईमानदार बाप कहा गया है, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। कब तक उसने वादे के फरजंद का इंतजार किया, अधेड़ उम्र तक। लेकिन जब फरजंद मिला तो उसी की खुदा आपने कुर्बानी नहीं की। वो आखिर तक अपने ईमान में मजबूत रहा। जब वो कुर्बानी की नींव उस जगह पे, जिस जगह पे खुदा ने उसको कहा था कि जाकर कुर्बानी उसरान, कायम रहा। राम में बेटे ने पूछा कि बाप, हम कुर्बानी गुजरानने तो चाहते हैं, बढ़ना कहा। फिर दूसरा मकाम उसने अपने नौकर से कहा कि तू यहां रुक। हम, यानी उसका ये तवक्कल है कि खुदा मुहैया करने में कादरे मुतलक है। क्या कहा, अल्फाजों पे जरा गौर कीजिएगा। उसने कहा तू यहां रुक, हम कुर्बानी गुजराने के बाद वापस आते हैं। यानी उसमें पूरे के पूरे जो जुमले कहे गए वो जमा के। उसने ये नहीं कहा कि मैं आता हूं, उसने कहा हम आते हैं। उसका यकीन है कि खुदा खुद मुहैया करे।
जैसा खुदा ने उसको कहा था वैसा ही उसने किया। जब छुरी गर्दन पर रखने का वक्त आया तो खुदा ने उसको पुकारा और उसने उस बर्रे को लिया जो खुदा ने उस वक्त मुहैया किया। और इसीलिए खुदा का नाम यहोवा यरी रखा गया। और अब्राहम ने कहा मेरा खुदा मुहैया करने वाला है। मेरे अजीजों, आज भी हम जब इस यकीन कामल के तहत, इस ईमान के तहत कि खुदा हमारी जरूरतों को, हमारी उम्मीदों को पूरा करता है, तो उसके पीछे आपका ईमान है, आपके अमाल है, आपके कौलो फेल है, आपका हुस्नो रवैया है, जिसकी वजह से आपकी हर आस उम्मीद जनाब यीशु इस उम्मीद के साथ जो आप उससे बांधते हैं पूरी करता है कि आप उसके जलाल के लिए उस बरकत को जब पाते हैं तो वही जुड़े कि मेरे ईमान ने मुझे ये बरकत दी ताकि यीशु नाम जलाल पाए, यीशु नाम की लोग चर्चा करें, ताकि ये दुनिया जो हमारे गिर्द है जाने कि हम उसके खून खरीदे और उसके नाम की जब लोग तारीफ करेंगे तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे और उसके उस आने के इस दुनिया के मकसद को पूरा करेंगे। खुदावंद हम सबको ये तौफीक दे कि हम उसमें बढ़े, जैसा वो बाप में कामल था हम भी उसके साथ जुड़ते हुए कामल बन जाए, ताकि एक ही गल्ला हो और एक ही चरवाहा हो। खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम अमान में बढ़े और दुनिया में उसके जलाल के लिए चर्चा करें। खुदावंद सबको इस कलाम की बरकत दे और तौफीक दे कि हम इस पे अमल पैदा होने वाले बने। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नथानियल इस पावरफुल और बाबरकत कलाम के लिए। बेशक कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाए और हम भी अपने ईमान की हिफाजत करें। खुदावंद हमेशा हमारे साथ हो, अपने ईमान को मजबूत रखते हुए उसकी राहों में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद हम सब के साथ हो। आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और मैं भाई दानिश से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप शुक्रगुजारी की दुआ भी कर दें और इसके साथ आप ज़रूर एक वर्शिप कीजिएगा और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम ब्रदर।